میں ہوں ارشاد کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ۔ ناظرین، آج کی رپورٹ میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ اب سیلاب تو آ گیا، تباہ کاری ہو گئی، لوگ بیچارے بے یار و مددگار مصیبت میں، لیکن اب ہر دھندا سیلاب کے نام پہ شروع ہوگا۔ بالکل، باقی کرپشن تو الگ اپنی جگہ، لیکن آج آپ کو ایک قصہ بتائیں گے کہ ایک دردناک قصہ کہ شرم سے سر جھک جائے کہ بھتہ خوری، اب اس کو بھی سیلاب متاثرین کی امداد کا نام دیا گیا ہے۔ وہ بھتہ خوری کیا ہے؟ وہ ہر سال ہوتی ہے، لیکن رواں سیزن کے لیے اس بھتہ خوری کا نام ہو گیا ہے فلڈ ڈونیشن۔ جی، یہ فلڈ ڈونیشن لاسٹ ایئر میرے خیال میں اس کا نام کچھ اور تھا کہ یہ آفس کی خریداری اور مینٹیننس ہو، یہ کوڈ چینج ہوتے رہتے ہیں بھتہ خوری کے۔ اب شرم کی بات ہے، کیونکہ یہ سیلاب آیا ہے تو سیلاب کے آڑ میں سب کچھ یہ بھتہ خوری، اور وہ بھی سرکاری، جی سرکاری کالی بھیڑوں کی بھتہ خوری۔ یہ کوئی وہ گینگ وار یا یہ ہے تو وہ بھی گینگ وار ہی، اس طرح کی نہیں ہے۔ اس کو سرکاری پروٹیکشن کس طرح حاصل ہے؟ باقی میں نے آپ کو ناظرین 29 ستمبر کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ ایک گور پٹ، وہ بڑے قبرستان کو سوچ رہا ہے کہ میں بڑے قبرستان پہ جا کے دھاوا بولوں، وہاں پہ ٹھکانہ قائم کروں، سارے مردے نکال کے کھاؤں۔ وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کل ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے 28 افسران کے، لیکن اس میں بدنیتی اتنی ہے کہ کسی کا گریڈ چھپایا گیا ہے، کسی کی ڈیزینیشن چھپائی گئی ہے۔ سپریم کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور اس کی روشنی میں خود چیف سیکریٹری سندھ کے دفتر SNGD کے جو نوٹیفیکیشن جاری کی، ان کی صریحاً خلاف ورزی، اور وہ خلاف ورزی کرنے کا ان کو اختیار کون دیتا ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس پہ نظر نہیں جا رہی؟ جو یہ آپ کو فلڈ ڈونیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اور باقی ایک بڑا ڈاکو، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انڈس ہائی وے، نیشنل ہائی وے کا بڑا ڈاکو، اس نے اپنا روٹ کس طرح کلیئر کرا لیا ہے لوٹ مار کے لیے، تو وہ بھی آج کی رپورٹ کا حصہ ہے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فلڈ ڈونیشن، جی چندہ سیلاب کے نام پہ، بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ متاثرین کے نام پہ یہ چندہ اکٹھے ہو رہا ہے۔ جی نہیں، یہ بھتہ خوری ہے۔ یہ بھتہ خوری کے لیے فلڈ ڈونیشن کا کوڈ آ گیا ہے۔ اب فلڈ ہے تو سب کوئی اسی کو استعمال کرے گا، اور وہ کون کر رہا ہے؟ محکمہ خوراک کی کمیشن مافیا۔ لاسٹ ایئر اس کا نام تھا کہ آفس خرید رہے ہیں، اور آفس کی مرمت کے لیے کراچی کی فی فلور مل نے 6 لاکھ روپے وہ فوڈ والوں کے لیے، اوپر والوں کے لیے، جی مکیش چاولہ کے لیے۔ اور کس کے لیے مکیش چاولہ کس کو پہنچاتا ہے؟ وہ اوپر بلاول ہاؤس تک وہ بتتا جاتا ہے اس کے نام پہ۔ اب اس کو نام دیا گیا کہ یہ فلڈ آ گیا تھا، فلڈ ڈونیشن۔ اور فی فلور مل کو، ہر فلور مل کو میرے خیال میں نہیں میسیج وہ پہنچا ہوگا، نام انہوں نے طے کر لیا ہے۔ ابھی فی الحال تو میرے خیال میں یہ ہے کہ بھائی ابھی روزہ بھی رکھیں، کیونکہ یہ تھوڑا ابھی سستے آٹے کی کہانی شروع ہے، تھوڑا وہ دکھاوا بھی کرنا ہے۔ تو فی الحال تو وہ 5 لاکھ روپے کی کہانی چلیے نہیں، لیکن یہ 10 لاکھ تک جائے گی، کیونکہ ابھی گندم کے ریٹ میں فرق ہے، اور سستا آٹا کہاں ہے؟ سستے آٹے کی یہ کہانی ساری آپ وہ بھول جائیں۔ اب 9 کروڑ روپے تقریباً 92 فلور ملے کراچی میں، ایک 10 لاکھ بھی، یہ آگے چل کے 10 لاکھ تک ہو جائے گا، ابھی بھلے وہ کم، اور اس میں خود فلور مل ایسوسیشن والے خود ملوث ہیں۔ جب ان کی پارٹنرشپ ہو فلور مل والوں کی تو باقی وہ کیا رہ جاتا ہے؟ اب ایسے لوگ بھائی ظالموں لوگوں کو آٹا تو دیں، اس کی جان تو چھوڑیں کمائی کے لیے۔ اب سیلاب آ گیا، تباہ کاری ہو گئی، اب ایریگیشن سے کم کمائیں گے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے کم کمائیں گے، اب ساری ریہیبلیٹیشن بھی ہونی ہے۔ ورکس اینڈ سروسز کیا کرے گا؟ یہی کس طرح وہ ٹھیکے ہوتے ہیں، 30% بھی کام نہیں، وہاں کم کمائیں گے، لائیو اسٹاک کے نام پہ کم کمائیں گے۔ ارے بھائی ظالموں، کم از کم یہ عوام کی روٹی کا سوال ہے، نوالے کا سوال ہے، اس کو تو بخش دیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو تو بخش دیں۔ لوگ مر رہے ہیں، نہ ان کے پاس ادویات ہیں نہ کچھ ہے، لیکن یہ تو بنیادی ضرورت ہے آٹا۔ لیکن نہیں، سیلاب آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، سونامی آئے، کچھ بھی آئے، ان کا دھندا وہی کہ نہیں اب اس کو فلڈ ڈونیشن کا نام دینا۔ کتنی تذلیل ہے یہ!
क्या मुतासरीन अगर किसी के पास ये वीडियो पहुंच जाए कि हम यहाँ सड़ रहे हैं, बेयारों मददगार बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं, ये हमारे नाम पे चंदा इकट्ठा करने के नाम पे उसको ये नाम दिया गया है, ये कितनी भी चाहे तरदीद करें। और ये लेकिन ये अभी ये जैसे मैंने बताया कि अभी तो 5 लाख की बोली आ रही है, लेकिन वो भी अभी के रोज़ा रखें भी कह रहे हैं, ये आगे चल के कहानी ये बढ़ेगी। अब कितने जालिम लोग हैं, नाज़रीन सोचें कि ये सुधरने क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये नहीं जाता। मुकेश चावला क्या है, मुकेश चावला किस खेत की मूली है? ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ही है। क्या ये सैयद मुराद अली शाह सारे चक्कर काटते हैं सारे सैलाब के, उनके पास ये नहीं आते कि ये सस्ता आटा कहाँ है? सक्खर में जो तबाही मची हुई है, जो इतनी फ्लोर मिलों को उन्होंने दिए, ये आगे चल के किसी और में बता दूंगा, वो सब के नाम में इकट्ठे करूँगा कौन कौन। वो दादू में तो वो अगर मुराद अली शाह चाहे उसका हल्का है, भान से थोड़ा निकल के देखे कि फ्लोर मिल है ही नहीं, मेहरान फ्लोर मिल, उसको भी वो गंदम दे रहे हैं। वो सारी तबाही मचाने में वो अली मक्सी और डायरेक्टर फूड जो ये बिशनी शाह है, उसको तो ऐसी तबाही मचाई है उन्होंने कि वो शर्म हया वो इज़्ज़त नाम का कोई तस्वर नहीं। लोग मर रहे, आप भी सोच रहे हैं कि इतने जज्बाती कैसे ना हो, लोग भूख से मर रहे हैं, ये फ्लड डोनेशन के नाम पे चंदा कायम कर रहे हैं। वो मुझे एक अहमद फराज साहब का शेर याद आ रहा है, बड़ा बेहतरीन शेर है, इस पे पूरा उतरता है कि कितने बेरहम हैं ये लोग, जुए खूह को नाम देते हैं जुए शीर का। ये खूह, ये जुए खूह है, खून की नदी है, उसको नाम देते हैं कि जुए शीर है। ये खीर की नदियां बह रही हैं इनके लिए, इनके दौर में हर कोई भी सूरत हाल हो, इनको ये खून की नदियां भी दूध की नदियां लगती हैं। और बाकी मैंने बताया कि वो गोरपट बिज्जू जो मैंने आपको 29 तारीख में के 29 सितंबर के वीलाग में नाजरीन बताया था, क्या बताया था पहले ये थोड़ा सुन लें, वो तो लंबा चौड़ा था, उसमें एंटी करप्शन किए गए आइडियो लीक का भी तज़किरा था, लेकिन ये सुने। एक गोरपट बिज्जू वो अब सोच रहा है कि सबसे बड़े कब्रिस्तान पे अब मैं आके बैठूं ताकि वहाँ पे जितने भी मुर्दे आएँ, जितनी भी मैयतें आएँ, उसको खोद के कब्र से खा लूँ। गोरपट का काम यही होता है ना। और वो भी यही है, हसन अली मक्सी अब उस मौसूफ की कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची सबसे बड़ा फूड डिपार्टमेंट का कब्रिस्तान, जितने भी सिंध में गुनाह होते हैं वो आके यहाँ दफन होते हैं कि वहाँ से गंदम आई नहीं। इन्होंने रिकन्सिलेशन तो होती नहीं है, इन्होंने दिखा दिया कि हमारे पास गंदम आ गई, अब वहाँ खुद आके बैठेगा। सुना नाजरीन, ये मैंने आपको 29 तारीख को बताया था, और कल एक नोटिफिकेशन हुआ है महकमा खुराक का जिसमें तकरीबन 28 अफसरान की तकरीरी तबादलों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस अलियस हसन अली मक्सी इसको कहाँ पे ले आए हैं, यहीं पे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपने सुनी होगी वीडियो पुरानी कि ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है डिस्ट्रिक्ट मलीर, DFC मलीर, वहाँ का उसको तैनात किया गया। जितने भी गुनाह होते हैं वो यहाँ आके, पूरे सिंध में जितने भी गुनाह हो वो यहाँ आके दफन होते हैं। अब इसको यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब इसको कंबर शहदाद कोट में इसका गंद, इसका दादू में जो पपीडी बिठाए उसने तो 2.25 लाख बोरी गंदम डैमेज दिखा भी दी, जो पूरी सिंध में तकरीबन 4,28,000 में, उनमें से सिर्फ एक दादू में वो शहजाद शाहानी ये मिलके खाएंगे। और वो जो है सांगड़ में भी इसका गंद, नौशेरो फेरोज़ में, पूरे सिंध में इसका गंद। वो यहाँ आके क्यों बैठे हैं कि वो जितनी भी डैमेज वीट या जो शॉर्टेज वाली है वो यहाँ दिखा के वो सारी वो कुछ कर देंगे। अब ये इसकी पोस्टिंग हो गई है यहाँ पे भी, और इन्हें पोस्टिंग और भी मिली है, 2 पोस्टिंग ग्रेड 15 के मुलाजिम को DFC हैदराबाद का चार्ज भी उनके पास। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी को याद नहीं है? जस्टिस अमीर मुसलम हानी ने क्या शानदार फैसला दिया था 2013 में, फिर 2015 में उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मामला आया कि OPS वाले सब ख़त्म, ये 15 ग्रेड का मुलाजिम ये तैनात हो ही नहीं सकता DFC, लेकिन कौन पूछे। और दूसरी बात कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला है कि डुअल चार्ज नहीं दे सकते, 2 बिला जवाज़ किसी को भी आप 2 चार्ज नहीं दे सकते अफसर को, इसको 2 चार्ज इसको भी और इसके पपीट शाहानी को भी। मेरे ख्याल में उसको हटा देंगे। सांगड़ कहाँ दादू, और इस सैलाब ये कराची भी संभालेगा, मलीर भी और हैदराबाद भी, ये सारे पैसों की कहानी है। और अब क्या होगा, अब एक नहर निकलेगी, पानी है ना, पानी निकालना है सैलाब, लेकिन वो नहर कहाँ से निकलेगी? वो मलीर से निकलेगी, मलीर गोदाम लांडी से सीधी आएगी मुकेश चावला के घर तक, लेकिन उसमें पानी नहीं बहेगा, उसमें नोट बहेंगे। अब ये नोट बहा के आएंगे। अब वहाँ का जो डिप्टी डायरेक्टर है मकसूद घुमरो, मकसूद चपड़ासी, अब वो भी देखेंगे कि क्या है, डायरेक्टर को भी देखेंगे क्या है। अब तो जब अली मक्सी वहाँ आके बैठा तो बस तमाम मामला
ख़त्म। अब वो तो मिनिस्टर यूँ समझे कि आके गोदाम पे बैठा, अब ये जो जी में आएगा जिसको जैसे चाहेंगे लताड़ेंगे। अब देखें कि आगे चल के क्या होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन कैडर एक क्लर्क असिस्टेंट 16 ग्रेड का, उसमें भी इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिखाया कमाल है, BPS 16। अरे भाई क्यों नहीं लिखते कि ये असिस्टेंट किससे छुपाते? बदनीयती। ये देखे सेक्रेटरी समझ रहा है कि ये किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ भाई आपको बता दूं, कोर्ट में लोग अब फूड वाले तो मेरे ख्याल में कम जाएं, मेरे जैसे सोच रहे हैं कि जाएंगे कोर्ट में कि ये अली हसन मक्सी कैसे 15 ग्रेड का मुलाजिम। और मज़े की बात है कि अली हसन अली मक्सी के नोटिफिकेशन में उसका ग्रेड तक नहीं लिखा। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? ग्रेड नहीं लिखा। ये अनोखा कारनामा। और एक DFC निसार मेमन, उसको भी ADFC उन्होंने लिखा है, हटा दिया उसको साउथ में से। वो तो बड़े लंबे चौड़े इन्होंने जो है वो 28 के आज की रोज़ाना मोहम्मद में वो शाया कर चुका हूँ मैं, पूरे वो हल्के फुल्के तबसरे के साथ वो आप पढ़ सकते हैं। अब ये यहाँ पे बैठने का मकसद आगे जी मैंने आपको कैसे बताया था कि ये गोरपट है या नहीं, सारे लकब इसके लिए। और इंडस हाईवे का बड़ा डाकू भी। अब क्या है, अब वो अपना पपीट वो जो घर बैठा हुआ था आगा जुल्फ़कार, वो बड़े उसके कारनामे एंटी करप्शन के जैकबाबाद के अलग केस चल रहे हैं, सब चुन चुन के इन्होंने वहाँ पे वो लगाए हैं उसको कंबर शहजाद कोर्ट में। अब वो क्या करेगा, जैसे यही कहेगा वही कहेगा। दादू में पहले ही वो ड्यूल चार्ज उसको शहनशाही को दी गई है। और उनके आँख में थोड़े रूट में थोड़ी रुकावट थी, वो था एक फराज आलम शाह जामशोर वाला, मेरे ख्याल में वो रापोर्टरों और CM हाउस के वो थ्रू कोई उसकी पोस्टिंग हुई थी, तो वो इनको थोड़ा वो आँख में खटक रहा था कि नहीं, उसको भी हटा दिया। वहाँ पे शिकारपुर वाले को दिलशाद सुमरो को वहाँ आके बिठाया। और जो जगदीश जो इसका पपीट, ये सारे मामा लालू ग्रुप बता रहा हूँ, ये बदीन से उसको वहाँ ले गए। और मेरे ख्याल में वो विशन दास उर्फ आंटी शमीम 2-3 बरस के बाद उसकी दिल की तमन्ना, उसकी ख्वाहिश पूरी हुई। 2020 के बाद वो दोबारा जाके DFC सखर लगे हैं नाजरीन जी। वो आंटी शमीम ये विशन दास जिसका प्रोमोशन ही गलत है। अली मक्सी तो 15 ग्रेड का है, ये भी 16 ग्रेड में ADFC। इसका प्रमोशन मुझे याद है कि जून 2020 में DPC हुई थी, उसके बाद ये प्रमोशन इनका नोटिफाई सितंबर में हुआ। फिर अक्टूबर में वो वहाँ के जाहिद बलोच साहब थे, उन्होंने एक वो कहा कि इसका नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं, इसकी तो इंक्वायरी चल रही है शिकारपुर में वो मुफ्ती वाले केस में। जब वो नोटिफाई हो गए, अब ये केस खुले हैं, तो इसका तो प्रोमोशन ही गलत है। लेकिन क्या है, जब अली मक्सी खुद बैठा हुआ है 15 ग्रेड का मुलाजिम और 2 15 ग्रेड के मुलाजिम इन्होंने हटा दिया। अच्छा किया कमर अली शाह, वो भी इसके साथ ही थे। और जो है वो इस बार क्यों हो वो। और एक नॉन कैडर बैठा हुआ था वहाँ पे मेरे ख्याल में कशबोर में जो है वसीम जमाली, इसका ट्रांसफ़र करके उसको अपनी प्रॉपर इन्होंने पोस्टिंग दी है बजट अकाउंट ऑफिसर हैदराबाद कराची रीजन में। सही है, बिल्कुल सही है। नॉन कैडर को क्यों होना चाहिए? ये अल्ताफ़ मक्सी किस में बैठे? अल्ताफ़ मक्सी को तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो सबसे बड़े कमाई का दर, उसको क्यों ना हो, वो तो लोटा लेके चलता है मिनिस्टर का। अब ये दोनों का राज चलेगा, वो गोरपट और ये अब इसका ग्रेड नहीं लिख रहे, ग्रेड लिख रहे हैं, इसकी डेजिनेशन नहीं लिख रहे हैं इस बागड़ बिल्ले की, अल्ताफ़ मक्सी की। अब उसको क्या आप नहीं लिखेंगे तो वो बागड़ बिल्ले से वो कोई मासूम खरगोश बन जाएगा? रहेगा तो वही बागड़ बिल्ला। लिखे ना उसकी डेजिनेशन की ये असिस्टेंट है और नॉन कैडर है। क्या ये कोर्ट में मामला गया? अब वो उसमें क्या है, मिनिस्टर ने तो अप्रूवल दे दिया, अब सेक्रेटरी को भी पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि लोग जा रहे हैं, हाँ मेरे जैसे भी जा सकते हैं। ये किस तरह जो है सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है, हाँ हर जगह हो रही है, क्या है। और ये जो इन्होंने जो लोग रखे हैं बाकी भी, मेरे ख्याल में 1-2 पोस्टिंग और भी होनी है। और वो भी चिल्ला रहा है न्याज़ारी जो जिसको, वो उस बेचारे के साथ तो जुल्म हुआ है, उससे वो जुनेद फ्लोर मिल वाला सारा गंद उससे कराया, डिफ़ाल्टर वो कैसे वो सेक्रेटरी और बाकियों ने पैसे खाए इस लालच पे कि मुझे हैदराबाद मिलेगा। वो कहते हैं ना कि वो कुत्ता भी खाया पेट भी नहीं भरा। अब वो भी बेचारा परेशान कि अब वो उसको वो ठट्टा भेजा है। अब ठट्टा भेजा के वो जो पतीले में खाने वाला वो प्लेट में क्या करेगा, अब वो भी परेशान है। वहाँ पे दूसरी डबल चार्ज उन्होंने रखी, उसमें भी कोई गेम है। मुझे लग रहा है कि ये किसी न किसी को हैदराबाद में रखेंगे। और ये सारा मामा लालू ग्रुप, वो फैज़ अमन फैज़ साहब ने तो कहा था कि अब राज करेगी खल के खुदा। नहीं भाई, अब राज करेगा मामा लालू ग्रुप जी। ये और सीनियर्स रेगुलर DFCs घर बैठे हैं,
اور باقی جو سینئرس ہیں وہ سب گھر بیٹھے ہیں، جو علی مکسی چاہے گا وہ کرے گا ڈپارٹمنٹ، اس کے لیے وہ 15 گریڈ کا خود ملازم ہے، اس کو کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ چاولہ نے اس کو سارا کچھ بنایا ہے، اب یہ اربوں روپے کی کمیشن مل بانٹ کے ناظرین کھائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی رپورٹ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، ملیں گے اگلی رپورٹ پہ ساتھ۔